Hello guys, welcome back to College Pe Charcha. I am your host, and today we are tackling one big question: PICT NTC versus VIT CS. Which you should choose? I am thrilled to have our special guest today, Priyal from VIT IT and Pranav from PICT NTC. So let's start with the podcast. You both please introduce yourselves. Okay, so my name is Priya Gusate and I am from third year from VIT College and my branch is Information Technology. So myself Pranav Kavande, and I am a fourth year electronics and telecommunication engineering student from PICT. And now I will be sharing my experience with you. Okay, so let's begin with our questions. First up, if you got the same percentile again, would you still choose this college and branch? If yes or no, then why? Okay, so if I got the same percentile again, maybe I would prefer different college but with the same branch because I got around percentile of 97.14 percentile. So according to that specific year, I got this college and I feel that I got the best college at that percentile. Because I have also put up Government College of Engineering Amravati, which was below this college, and I got VIT AIDS previously, but in the spot round, I got VIT IT. So it depends totally on you which college you have to choose according to your interest. But maybe according to the interest, I'll also make sure that the Pune's other college like COP or VICT, maybe I'll try for this branch only. And it totally depends on the location as well. If I'm choosing Pune, then I'll choose college according to Pune, or if the location is different, like for Mumbai or Aurangabad or in Vidarbha. So it totally depends on you according to your interest, ki which college you have to choose. Yeah. And for me, I mostly prefer this college again if I got same percentile. But yeah, sure, I am not going to select this branch again because with the thing which I observed from last 3 years is that it is little bit difficult to manage academics with the other curricular activities in ENTC specifically. So yeah, I'm not going to choose the same branch again. And if you talk about the CSI and IT, then it is more easier for those students to manage the time for academics and extracurricular activities. So yeah. So, what expectations did you have before joining, and what was the reality? ओके सो एक्सपेक्टेशन आपको ऐसे पता चलती है कि अगर आप सीनियर से बात करोगे तो आपको पता चलता है कि रियलिटी क्या है कॉलेज की, बिकॉज आप इतने सारे वीडियो देखोगे कि इस कॉलेज में क्या होता है, फिर इसका सराउंडिंग क्या है, या फिर इसका कैंपस कैसा है, कैंटीन कैसा है, हॉस्टल कैसा है. बट आई वुड मोस्टली प्रेफर कि आप सीनियर से कनेक्ट हो, उनको पूछो कि एग्जैक्टली कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज की रियलिटी क्या है. बिकॉज बहुत सारी बातें बताई जाती है कि प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, ये कंपनी जाती है, वो कंपनी जाती है वेबसाइट पे, बट रियलिटी क्या है, जो डेटा वो स्टूडेंट्स के पास होगा जो एग्जैक्टली कॉलेज में प्रेजेंट है, उनको ज्यादा आइडिया होता है एज कम्पेयर टू वॉचिंग वीडियोज और डूम स्क्रोलिंग करने के लिए. बिकॉज ऐसा होता है कि आपका ड्रीम कॉलेज है और आप कॉन्स्टेंटली उसको डूम स्क्रोलिंग कर रहे हो कि ये कॉलेज मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा. बट कैप राउंड में जो मिलेगा एज वेल एज जो आपको आपका ड्रीम कॉलेज है, इसमें भी बहुत डिफरेंस होता है. सो ये देख के चलो कि आपके जो एक्सपेक्टेशन है वो सिर्फ वीडियो से कंप्लीट ना हो, बट ऑल्सो सीनियर से कांटेक्ट करने से. तो आपके एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. और एक्सपेक्टेशंस वर की कॉलेज बड़ा होगा, जहाँ की वीआईटी का कैंपस बहुत ज़्यादा छोटा है, लाइक ऑलमोस्ट 4 बिल्डिंग्स ही है एंड इट इज़ नॉट बिग. और पार्किंग को, ग्राउंड को भी पार्किंग बना दिया है, सो वो भी वर्थ इट नहीं लगता है. ऐसा लगता है कि स्कूल में जा रहे हो और सिर्फ सारी बिल्डिंग है. ऑल्सो एक्सपेक्टेशंस वर की क्राउड कम होगा, बट हमारे ईयर में इनटेक बहुत ज़्यादा बड़ा है, सो क्राउड इज़ ह्यूज, कॉलेज में चलने की जगह भी नहीं होती है. ऑलवेज कैंटीन और स्टाफ कैंटीन या फिर जितने भी कैंटीन है वो फुल होते हैं पीक टाइम पे. सो आई प्रेफर कि जो एक्सपेक्टेशंस है और रियलिटी में बहुत डिफरेंस आ गया. एंड फॉर मी लाइक एक्सपेक्टेशंस तो ऐसे थे कि कॉलेज बहुत बड़ा होगा एंड फिर एकदम प्लेसमेंट सबको ही मिलती होगी, बहुत कुछ मतलब सोचा था. लेकिन कॉलेज जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद समझ में आया कि कॉलेज तो कुछ नहीं है, कॉलेज बहुत छोटा था. सबको पता भी है कॉलेज PICT का कैंपस बहुत छोटा है. एंड मुझे लगा था कि PICT इज ऑल अबाउट द एकेडमिक्स एंड ऑल, बट कॉलेज में जाने के बाद पता चला कि बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कॉलेज में होती है, जैसे हैकेथॉन्स हो गए. बहुत से क्लब भी हैं कि मतलब आर्ट क्लब वगैरह भी होते हैं कॉलेजेस में. तो फिर या सिर्फ एकेडमिक्स रिलेटेड ही नहीं है PICT, बाकी भी आप बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हो PICT में, काफ़ी कुछ सीख भी सकते हो. So, how difficult it is it to maintain a good CGPA in your branch?
ओके, सो इन आईटी इफ आई वुड प्रेफरेबली से, तो ऐसा होता है कि आप अगर रोज कॉलेज जा रहे हो और कॉलेज के जी। लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, तो सीजीपीए अच्छा खासा मिल जाता है। और वैसे भी इंजीनियरिंग कर रहे हो तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन तो होती है, एक दिन पहले तो आपको पढ़ना ही है। सो इट टोटली डिपेंड्स कि कॉलेज इतना करो कि आपको समझे कि आप क्या कर रहे हो, सो दैट ऑन मोमेंट कौन सा वन शॉट देखना है, फिर कौन सा वीडियो देखना है, ये तो भी पता होना चाहिए और सिलेबस का आइडिया होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। बट मेजरली ऐसा होता है कि एकेडमिक जो आपका स्केड्यूल होता है, बिकॉज आई गेस ऐसा होता है कि 8 से 12 किसी का कॉलेज होता है या फिर 2 से 6 होता है कॉलेज। तो आपको इतना टाइम तो मिलता है कि आप बाकी के भी एक्टिविटीज कर पाओ। सो मेन आपका चैलेंज ये है कि कोडिंग और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करना है एज कम्पेयर टू कॉलेज। बिकॉज कॉलेज का टाइमिंग मैक्स टू मैक्स 4 to 5 आवर्स लेक्चर होते होंगे और 1 घंटा आपको ब्रेक मिलता है बीच में। सो मेन थिंग इज आपको बाकी के इसमें कैसे एडजस्ट करना और टाइम कैसे देना है। कॉलेज के क्लब्स भी है तो वो हैकाथॉन्स कॉम्पिटिशन्स भी लेते हैं। सो मोस्टली आई वुड से कि उस पे ज्यादा फोकस करो एज कम्पेयर टू एकेडमिक्स। एकेडमिक्स एडजस्ट हो जाते हैं, वो हार्ड नहीं है। बट अगर आप बोलोगे ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, तो ग्रेडिंग सिस्टम फैकल्टी पे डिपेंड करती है, कौन सी फैकल्टी इजीली मार्क्स देती है, कौन सी फैकल्टी नहीं देती है। सो वो फैकल्टी पर है और आप ट्राई करो कि आप पेपर पे इतना भी मतलब इतना है कि एक सीजीपीए मेंटेन करके रखो, बिकॉज प्लेसमेंट्स में वो उनका क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उतना आपका पास हो गया, सो यू आर डन। आपको उससे ज्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं है। So in PICT, to maintain CGPA in ENTC branch is very difficult. Not impossible, but very difficult. Because मीन्स ENTC काफ़ी हद तक स्ट्रिक्ट है, अटेंडेंस वगैरह भी मतलब अटेंडेंस क्राइटेरिया बहुत कुछ रहता है। तो मेरे लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगा, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरी भी ENTC ब्रांच थी, तो PICT ब्रांच का जो एवरेज CGPA होता है वो ऑलमोस्ट 8 के आसपास ही होता है। लेकिन वही अगर आपने CSIT में देखा तो मीन्स बहुत उनका एवरेज ज़्यादा होता है और उनको CGPA स्कोर करना ईजी होता है क्योंकि उनके प्रैक्टिकल्स आई थिंक ईजी होते हैं एज कम्पेयर टू ENTC। सो इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू मेंटेन CGPA अबव 9 इन ENTC। बट अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो एकेडमिक्स की तो फिर आपके लिए ईजी जा सकता है 9+ CGPA मेंटेन रखना। या बट सिर्फ एकेडमिक्स कर से करके ही आपको प्लेसमेंट तो मिलने वाला है नहीं। सो इसलिए आपको थोड़ा बैलेंस रखना पड़ता है ENTC में। आपको कोडिंग वगैरह भी करना पड़ता है एंड आपको मीन्स GPA भी मेंटेन करना पड़ता है। तो फिर वही फिर टाइम मैनेजमेंट बहुत मेन फैक्टर है ENTC में। लेकिन अगर जितना ज़्यादा आपका मतलब CGPA रहेगा उतना आपको मतलब इजीली प्लेसमेंट वगैरह मिलने में आपको उसकी बहुत अच्छी हेल्प हो सकती है क्योंकि PICT में मोस्टली ऐसा होता है कि शॉर्ट लिस्टिंग के वक्त जब कंपनी शॉर्ट लिस्ट करती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम CGPA के बेसिस पे करती है। सो और ऐसे बहुत से बच्चे रहते हैं CSIT में जिसका CGPA 9 के ऊपर रहता है, 9.5 के ऊपर। तो अगर आपको उनके साथ कॉम्पीट करना है तो फिर आपको CGPA 9+ रखना इज मस्ट। और आई वुड से कि सीएस वालों को सीजीपीए अच्छा मिलता है, बिकॉज उनके असाइनमेंट्स सभी वर्ड डॉक्यूमेंट में होते हैं। तो डायरेक्टली आप एआई टूल्स यूज करके वो असाइनमेंट्स भी कंप्लीट होते हैं। मेजरली सिर्फ है कि एंड सेम्स अच्छे से देना होता है, तो उनका सीजीपीए वैसे ही निकल ही जाता है। और ईएनटीसी में मैनुअल वर्क अगर होगा तो फिर असाइनमेंट्स में ऑब्वियसली दिक्कत जाएगी और पेपर देने में भी और होगी कि प्रोफेसर्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है PICT में ENTC के, तो पढ़ाई तो करनी पड़ती है अच्छा CGPA मेंटेन रखने के लिए। और Yes. सीनियर से अगर आप पूछोगे कि वन शॉट भी मिल जाएगा क्या सीएस का, और बेसिकली 4 पिलर्स होते हैं, लाइक ओएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स और उप्स भी। तो आपको वन शॉट डायरेक्टली सर्च मारने पे जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट व्यू का होता है वही आप देखते हो और वही सबसे ज्यादा अच्छा होता है। यही सबका रूटीन होता है सीएसआईटी में कि वन शॉट डालो, देखो, कंप्लीट, पेपर निकल जाता है। आई डोंट फील सो कि ईएनटीसी में ऐसा होता होगा और उनको बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता होगा रेफरेंस कहाँ से पढ़े कहाँ से पढ़े। Okay. Let's begin with fourth question. Okay. How much free time do you get for coding, hackathon, and intern course? ओके, तो जैसे मैंने बताया कि जो हमारा टाइम टेबल होता है वो मैक्स टू मैक्स लाई करता है 2 सेक्शन में। एक होता है सुबह का टाइमिंग, एक होता है इवनिंग का टाइमिंग। सो डिपेंड करता है कि कौन से क्लास को कौन सा स्केड्यूल मिलेगा। किसी को मिलता है 8 से 12 या फिर 2 तक, या फिर किसी को मिलता है 12 से 6 तक। सो डिपेंडिंग ऑन कौन सा क्लास। तो मैं तो बोलूंगी कि आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है, बिकॉज क्लासेस अगर आपके 12 और 2 पर खत्म हो रहे हैं तो यू हैव इनफ टाइम इवनिंग से रात तक कि आपको जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करनी होगी, कि कोडिंग के टेस्ट देने हैं या फिर हैकाथॉन्स के लिए प्रिपरेशन करना है या फिर कुछ भी एक्सेप्ट एकेडमिक्स, तो वो आप कर सकते हो। एंड आई फील उतना इनफ टाइम है कि वो आपको मोटिवेट करे कि आप उन चीज़ों पर भी ध्यान दो। एज वेल एज कॉलेज भी कंडक्ट करते हैं तो वो भी बोलते हैं कि ये ग्रुप करो वो ग्रुप करो। तो आई फील
उसका कुछ इश्यू नहीं जाएगा। एज वेल एज हाँ, ये कॉलेज में ईडीआई ग्रुप्स भी होते हैं जो एक प्रोजेक्ट कंडक्ट करते हैं ईच सेमेस्टर, और वो आपका पूरे सेमेस्टर का एक प्रोजेक्ट होता है। सो आई फील वो भी एक प्लस पॉइंट है इस कॉलेज का कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है एक सेमेस्टर में, एज वेल एज उसका पेटेंट भी पब्लिश करना होता है और उसके लिए भी ग्रेड्स होते हैं। सो यस, ऐसा स्केड्यूल है और आपको टाइम मिलता है आफ्टर द एकेडमिक्स और आफ्टर द कॉलेज की आप बाकी की चीज़ों पर भी फोकस कर सकते हो। Yeah, so for my college, the means the workload is higher than many colleges, especially during the assignment and practical submissions. क्योंकि सबमिशंस के टाइम तो बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि सबमिशंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं पीआईसीटी में। तो कोडिंग वगैरह अगर आपको करना है साइड बाय साइड, तो फिर हैकेथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना है, तो फिर आपको टाइम मैनेजमेंट ही करना पड़ेगा ठीक से। क्योंकि ईएनटीसी अगर आप ले रहे हो पीआईसीटी में, तो फिर आपको टाइम मैनेजमेंट से सीखना पड़ेगा, क्योंकि एकेडमिक्स थोड़ा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा भी नहीं, काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो फिर अगर आपको ये करना है कि तो कोडिंग वगैरह, तो फिर बहुत ठीक से मैनेज करना पड़ेगा टाइम। और वही अगर आप दूसरे सीएस आईटी एआईडीएस वगैरह ब्रांच देखोगे, तो फिर उनका एकेडमिक्स इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना ईएनटीसी का है, तो फिर उसमें काफ़ी अच्छे से टाइम मैनेज कर सकते हो आप। Okay. Then, are there any active technical clubs and communities in your college? यस, टेक्निकल क्लब्स जैसे कि होते हैं क्वार्क, IEEE, MLSC और बाकी के भी क्लब्स होते हैं कि अभिवृद्धि हो या फिर स्टूडेंट काउंसिल या फिर ईडीसी। सो टेक्निकल क्लब्स भी है और नॉन टेक्निकल क्लब्स भी है। तो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हो और आई वुड सजेस्ट कि क्लब्स ज्वाइन करो फर्स्ट ईयर और सेकंड में तो भी। बाकी के ईयर नहीं ज्वाइन किए तो भी चलेगा, बट स्टार्टिंग में ज्वाइन करो सो दैट आपको सीनियर से कॉन्टैक्ट भी रहेगा और अगर आपको कुछ डाउट्स हो या फिर कुछ भी पूछना होगा तो वो बेस्ट सोर्स है आपका नेटवर्क बनाने के लिए। बिकॉज एक्सेप्ट दैट आप सीनियर से बात करोगे डायरेक्टली तो इट्स नॉट गुड। तो अगर आप क्लब के थ्रू ज्वाइन करते हो और उनसे पूछते हो तो वो अच्छे से गाइड करते हो और सीनियर्स हेल्पफुल है वीआईटी कॉलेज के। तो आई फील कि टेक्निकल क्लब्स और नॉन टेक्निकल क्लब्स आपको अच्छे से पता चल ही जाएंगे। और एज वेल एज जब आप जाते हो तब सेशंस भी होते हैं, जब सब क्लब्स का इंट्रोडक्टरी सेशन होता है, इंडक्शन होता है बेसिकली स्टार्टिंग में। तो आपको आइडिया लग जाएगी कि कौन सा क्लब आपको प्रेफरेबल है, आपको ज्वाइन करना होगा तो आप कर सकते हो। सो आई डोंट फील सो कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है और वो ज्वाइन करो सो दैट आपका अच्छा खासा नेटवर्क बनेगा। And for my college, yes, there are technical clubs, coding communities, and hackathon teams, project groups, and various student chapters. So if you actively participate, then you will get a better opportunity to learn and like increase your network with senior. So yeah. Okay. हमारे So, कॉलेज में भी डांस क्लब भी है, लाइक जेफर्स हो गया, फिर एक्टिंग क्लब भी है। तो आपको जो पसंद है आप वो ज्वाइन करो स्टार्टिंग के ईयर्स में। उनके इंटरव्यूज भी होते हैं, जो वॉलंटियर्स, कोऑर्डिनेटर्स, हेड, देन प्रेसिडेंट, ऐसे बहुत सारे पोजीशन होते हैं। और आई गेस प्रेसिडेंट थर्ड ईयर में भी बनता है और जो वॉलंटियर्स और कोऑर्डिनेटर्स है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बनते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेटली उसको ज्वाइन कर सकते हो। Yeah. लेकिन मीन्स मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि ऐसे मत करो कि आप 5-6 क्लब ज्वाइन कर रहे हो और फिर आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। तो फिर या अगर आप ऐसे करोगे कि 5-6 क्लब सब ज्वाइन कर लोगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, तो फिर या तो आपकी पढ़ाई तो होने वाली है नहीं। और रही बात कोडिंग एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो वो भी आपसे होने नहीं वाला अगर आप मीन्स ज़्यादा क्लब ज्वाइन कर लें। सो बी स्पेसिफिक, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वही क्लब ज्वाइन करो। और मैं तो बोलूँगा 1-2 हार्डली और मैक्सिमम 3 क्लब्स ज्वाइन करो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर आप ये टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगा बाद में। एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल भी किया तो भी बहुत है, कि आपको पता चलेगा कि दोनों भी साइड क्या है। और वैसे भी अगर आप क्लब का पार्ट हो तो आपको इवेंट एंजॉय करने में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सो आई प्रेफर कि जिस इवेंट अच्छे से एंजॉय करना होगा तो क्लब का अगर पार्ट नहीं रहोगे तो अच्छे से एंजॉय भी होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। and there is one more thing that you need to join one club in PICT in your first year. It's compulsory to join one club in PICT. वो अभी नया हमारे पहले कॉलेज नहीं था ऐसा। अभी yes. शायद पीएचडी में ऑटोनॉमस हो गया कॉलेज, तो फिर वो रूल उन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया कि एक क्लब ज्वाइन करना ही पड़ेगा आपको। Yes. Okay. Then, what was the biggest challenge you faced after joining the college? ओके, तो बिगेस्ट चैलेंजेस कि आप 10th 11th 12th आप सभी रट्टा मारते हो, एंट्रेंस एग्जाम देते हो, सभी देते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि कॉलेज में जाने के भी बाद वैसे ही होगा कि सिर्फ एकेडमिक्स करना है, कॉलेज करना है और बस खत्म। तो आई डोंट फील सो कि ये मिथ ही है, बिकॉज कॉलेज में जाने के बाद आपको पूरा सेल्फ पेस्ड लर्निंग है। आपको देखना होता है कि कंपटीशन कैसे बढ़ रही है, कोडिंग कैसे करना है, कोडिंग के राउंड्स कैसे देने हैं, बहुत सारी चीजें आती है। सो आप ये कंपेयर मत करो कि आपने जैसे 11th 12th या फिर एंट्रेंस एग्जाम पास कर दिया या ये भी सिर्फ सेमी पास करना है।
सो आई वुड से कि जो मिथ है उसको ध्यान मत दो, ट्राई करो कि आप बाकी की चीज़ों पे भी ध्यान दो, बिकॉज़ एकेडमिक्स तो होता ही रहेगा, बट आई फील कि जो इम्पोर्टेंट है कोडिंग कल्चर या फिर हैकाथॉन्स, टीम्स, बिकॉज़ वो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाएगी और प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ मोर इम्पोर्टेंट एज़ कम्पेयर टू दिस एकेडमिक थिंग। एकेडमिक थिंग पे करो, बट जितना आपको ज़रूरी है उतना। दैट्स व्हाट आई थिंक। And for me, like balancing the academics with coding and skill development means for me, I initially focused too much on one side and ignore the other. Like later, I realized both the CGPA and skill matter. पहले मैं सिर्फ academics पे focus करता था, फिर लेकिन मेरे skill development और coding में इतना ध्यान नहीं दे पाता था मैं तब starting में फर्स्ट और सेकंड ईयर में. लेकिन सिर्फ CGPA मेंटेन रखने से कुछ नहीं होने वाला, आपको ये भी डेवलप करना ही पड़ेगा आपकी स्किल्स एंड लाइक कोडिंग स्किल्स एंड वगैरह. सो दोनों को बैलेंस रखना ये आपके हाथ में है. सो ये बिगेस्ट चैलेंज है आफ्टर ज्वाइनिंग द कॉलेज कि दोनों को कैसे आप बैलेंस रखोगे और रख पाओगे. Okay, so how are hostels, canteens, and overall campus environment? ओके, तो अगर आप वीआईटी का हॉस्टल देखोगे तो वीआईटी का हॉस्टल अराउंड 1 या फिर 1.5 किलोमीटर दूर है। वीआईटी बेबेवाड़ी का भी और कोंडवा का आई गेस सेम ही हॉस्टल है। तो बट एक मेन इशू हॉस्टल का ऐसा है कि वो सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों को ही रहने देते हैं और नॉट बाकी के ईयर्स की, बिकॉज इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनके भी पास इतने रूम्स नहीं है कि वो इतना अलोकेट कर पाए। तो सिर्फ वीआईटी के मेन हॉस्टल में फर्स्ट ईयर के ही लोग रह सकते हैं और बाकी के फिर फ्लैट्स और हॉस्टल्स अवेलेबल है, प्राइवेट हॉस्टल्स। तो जब आप कॉलेज विजिट करते हो तो कोई सीनियर बता देता है या फिर पता ही चल जाता है कि पुरिंदर हॉस्टल है या फिर विश्रांति हॉस्टल है, फिर बहुत सारे हॉस्टल्स अवेलेबल है एज वेल एज फ्लैट्स भी है। लाइक उसी साइड में चिंतामणि नगर भी है एज वेल एज खाऊ गली भी है। तो आपको वो सफिशिएंट हो जाता है कि आपके डेली एक्टिविटीज तो भी कंप्लीट होते हैं, कि जिम जा सकते हो या फिर खाना खा सकते हो वहाँ पे। सो आई डोंट फील सो कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। एज वेल एज अगर आप कैंटीन की बात करोगे तो मेन कैंटीन है, स्टाफ कैंटीन है, नेस्कैफे है, फिर एक फ्रूट कैंटीन है। तो इतने कैंटीन है कि कौन से भी कैंटीन में आप जाके अच्छा सा फूड खा सकते हो, खा मतलब इट्स गुड फूड, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप कैंपस की सराउंडिंग के बारे में बोलोगे तो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, बिकॉज बहुत सारे बिल्डिंग्स है, बहुत सारे गली है। तो आई डोंट फील कि इतना इफिशिएंट एरिया फिर इतना अच्छा एरिया है। बट पानी भर जाता है बारिश में या फिर लोग भी ऐसे सड़कों पे चलते हैं और बहुत आड़ा टेढ़ा कैसे भी रोड है। सो या कैंपस का सराउंडिंग वैसे ही है। And for me, the campus is relatively small compared to the private universities. बट जो हॉस्टल है, हॉस्टल फैसिलिटीज है और वो है वो डिसेंट है. दोनों भी हॉस्टल्स मीन्स गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज हॉस्टल कैंपस में ही है, तो मतलब सेफ्टी तो है. एंड कैंटीन फूड भी गुड इनफ है फॉर डेली कॉलेज लाइफ. बट कैंपस लाइफ मीन्स आई विल से दैट कैंपस लाइफ डिपेंड्स मोर ऑन योर फ्रेंड, नॉट जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. सो या ओवरऑल इट इज़ डिसेंट, बट मीन्स मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि बहुत से मतलब अगर आपको सेफ्टी वगैरह चाहिए तो फिर आप कॉलेज हॉस्टल भी प्रेफर कर सकते हो. लेकिन बाहर भी बहुत से ऐसे अच्छे प्राइवेट कॉलेज मीन्स हॉस्टल वगैरह है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल भी है. अगर मीन्स कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है फिर इतना मीन्स ज़्यादा रेंट होता है के हॉस्टल्स का, तो फिर मैं तो फिर उसे प्रेफर करूँगा कि आप बाहर भी रह सकते हो. काफ़ी अच्छे प्राइवेट हॉस्टल्स भी है अच्छे और रेंट भी बहुत कम है, सस्ता है. Okay, so do you think branch matter more or college matter more? What advice would you give to someone who confused during cap round? ओके, तो आई फील कि दोनों भी मैटर करते हैं, बट आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको सीएसआईटी ज़्यादा प्रेफरेबल है तो मे बी आपको लोअर कॉलेज भी चलता होगा। सो ऐसा होता है कि लोअर ब्रांच विथ हायर कॉलेज या फिर हाई मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच विथ लोअर कॉलेज। तो अगर आपको इन इन दोनों में डिफरेंस अगर आपको जानना होगा तो आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किस पे है। अगर आपको सीएसआईटी ज्वाइन करना है, फिर कोर ब्रांचेस ज्वाइन करना है, तो कौन सा कॉलेज अच्छा है उस स्पेसिफिक ब्रांच के लिए, बिकॉज आपको पूरे 4 साल निकालना है उस एक ब्रांच के लिए। तो अगर आप आपके इंटरेस्ट अभी डिसाइड करो और उसके अकॉर्डिंग ही ज्वाइन करो तो आपके 4 साल इजीली निकल जाएंगे। बट अगर आप ऐसी ब्रांच चॉइस करते हो जो आप 4 साल निकाल ही ना पाओ तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और आपको एग्जाम्स ही पास करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ जाएगी। तो आई वुड प्रेफर कि जो आपके इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही देखो और आप ट्राई करो कि शॉर्ट लिस्टिंग कॉलेज करो कि आप कौन से फैक्टर्स देख रहे हो, कि लोकेशन क्या है या फिर सीनियर्स अगर आप जानते होंगे या फिर नहीं, या फिर पास में कौन सा पड़ता है, या फिर आपका घर किधर है और अगर आपको पास में चाहिए होगा तो डिपेंडिंग ऑन यू और योर इंटरेस्ट देखो कि आपको कौन सा कॉलेज इफिशिएंट जाता है, ब्रांच इंपॉर्टेंट है फिर कॉलेज इंपॉर्टेंट। यस।
For me also both matter. आपका पैशन मीन्स आप किसमें पैशनेट हो स्पेसिफिक फील्ड में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है और ब्रांच भी इम्पोर्टेंट है. ब्रांच भी इम्पोर्टेंट है और कॉलेज भी. लाइक अगर कॉलेज आप ऐसे थ्री टीयर कॉलेज चूज कर रहे हो और उसमें आप अगर सी एस आई टी ले रहे हो, तो फिर मैं तो बोलूँगा कि फिर कॉलेज भी मैटर करेगा सबसे पहले, एंड देन ब्रांच. क्योंकि अगर आप टॉप कॉलेज होगा, टीयर वन कॉलेज होगा, उसमें अगर आप ई एन टी सी भी ले रहे हो तो आपको अच्छी खासी सॉफ्टवेयर अपॉर्चुनिटीज़ या फिर आपको जिस फील्ड में जिस जो फील्ड आपने चूज़ की है तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, क्योंकि कॉलेज अच्छा है, कॉलेज टीयर वन है, टीयर वन में आता है. सो फर्स्ट फॉर मी कॉलेज मैटर एंड देन सेकंड ब्रांच. तो या लेकिन आखिरी में वो सब आपके मीन्स आपको किस में इंटरेस्ट है ज़्यादा वही डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा. सो या पहले सोचो एंड फिर देन डिसाइड करो. So how easy or difficult is it to get a internship in your college? ओके, तो इंटर्नशिप जो ऑन कैंपस आती है वो मेजरली स्टार्ट होती है थर्ड ईयर से. अगर आपको ऑफ कैंपस ट्राई करना होगा तो आप लिंक्डइन से ट्राई कर सकते हो आपका रेज्यूमे डाल के, सो इट्स मोर कन्वीनियंट. और आई वुड से अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, सो जो इंटर्नशिप्स हमारे लिए अभी तक आई है देवर पार्कलेज, सीमंस, जेपी मॉर्गन और अभी भी ग्रीन मील्स आई है. तो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि कैसे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, बिकॉज वो अलाउ कर रहे हैं सी एस आई टी, स्पेशलाइज ब्रांचेस भी है, ए आई एम एल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आई ओ टी, साइबर सिक्योरिटी, ई एन टी सी, सभी ब्रांचेस को अलाउट करते हैं. बट आपको है कि आपको स्टैंड आउट कैसे करना है इतने बड़े क्राउड से, बिकॉज अगर इंटेक इतना जाता है, इतने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हो, तो इंटर्नशिप मिलना डेफिनेटली हार्ड है. बट अगर आपको आपके स्किल्स को स्टैंड आउट करना है तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा अंटिल थर्ड ईयर. जब आपको इंटर्नशिप आएगी, जब आपको ऑफर आएगा, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सभी राउंड्स पास करो. जैसे कि मेजरली डिफॉल्ट तो भी ऐसा होता है कि एक एप्टीट्यूड राउंड, टेक्निकल राउंड और फिर एचआर राउंड. सो इंटर्नशिप्स के लिए भी वो मेजरली टेक्निकल राउंड कॉलेज के लैब्स में ही लेते हैं, सो दैट कुछ स्पैम वगैरह ना हो. तो आई फील कि इंटर्नशिप्स इतनी हार्ड नहीं है, बट अगर आपके पास स्किल्स है तो बट डेफिनेटली आप इंटर्नशिप्स के लिए ज्वाइन हो ही सकते हो. और आई डोंट फील सो कि स्किल्स होने के बाद मल्टीपल इंटर्नशिप्स ट्राई करो. इतना सीरियस मत लो उसको, बिकॉज अगर आप नहीं सिलेक्ट हो एक इसमें तो ट्राई विथ अनदर अंटिल आपके पास इंटर्नशिप ना हो. बिकॉज अगर आप रेज्यूमे डालते हो तो डेफिनेटली वो वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं प्रोजेक्ट्स में, या फिर अगर आप इंटर्नशिप्स भी किए हैं तो वो भी स्टैंड आउट होता है आपके रेज्यूमे में. सो मेक श्योर कि आप इंटर्नशिप्स करो. एंड इन पी आई सी टी लाइक बहुत सी कंपनीज विजिट करती है, और मीन्स बहुत से जो स्टूडेंट्स है वो थर्ड ईयर में उन्हें इंटर्नशिप मिल जाती है, और उनको मीन्स इंटर्नशिप होने के बाद तो ऑफकोर्स वो कंपनीज फुल टाइम ऑफर भी देती है उन्हें. सो लेकिन इंटर्नशिप में क्या है कि आपको थर्ड ईयर में इंटर्नशिप आती है तो फिर आपको एक अच्छा खासा सी जी पी ए होना चाहिए, 9+. 9+, आई एम लाइक मेरे को स्ट्रिक्टली बहुत स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ मैं कि 9+ सी जी पी ए होना चाहिए. आपके पास अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, आपके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए आपके रिज्यूमे में, देन आपको इजीली इंटर्नशिप मिल सकती है पीएससी में. और मेन जो थिंग है वो है सीजीपी. जिसका जितना ज़्यादा सीजीपी है उसके उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाओ इंटरव्यू के लिए. सो या Okay, इंटर्नशिप so what, काफ़ी ईजी है. लेकिन मैं ये भी बोलूँगा कि अगर आप थर्ड ईयर में ट्राई करो कि आपको इंटर्नशिप्स मिल जाए, क्योंकि इंटर्नशिप मीन्स ईजी होती है थोड़ी, कि इंटरव्यू में इतना ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं एज कम्पेयर टू द फोर्थ ईयर. जब प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है फोर्थ ईयर में तो फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स उस हिसाब से होती है कि आपको बहुत कुछ आना चाहिए. लेकिन आप थर्ड ईयर में हो तो फिर कंपनी इतना भी कुछ आपसे ये नहीं करती कि आपको ये आना चाहिए वो आना चाहिए. लाइक सिंपल डी एस है एंड प्रोजेक्ट होना चाहिए जो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, एंड डिसेंट सी जी पी. दैट्स इट. okay, so what one thing you wish you don't know before joining the college? आई फील कि हमारे ईयर में ही इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो आई फील वो एक क्लॉज आता है कि जो अगर पहले पता होता तो शायद इस कॉलेज में ना लेते और एज कम्पेयर टू दूसरे कॉलेज में लेते, बिकॉज कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है. बट आप ये मत कंसिडर करो कि कंपटीशन एक डिसएडवांटेज है, कंसिडर करो कि वो एडवांटेज है, बिकॉज वो आपको डेफिनेटली रियलाइज करवाता है कि आपको कॉन्स्टेंटली खुद पे वर्क करना है और सेल्फ बेस्ड लर्निंग करनी है, बिकॉज दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. सो आई फील कि ये एक चीज़ है जो आपको पहले से पता होनी चाहिए कि सेल्फ बेस्ड लर्निंग है, एंड एकेडमिक्स और आपकी खुद की लर्निंग और कोडिंग और हैकाथॉन्स एंड प्रोजेक्ट वो दोनों भी अच्छे से मैनेजेबल होने चाहिए. Yeah. And for me, I wish that I had known that skills should be built from first year itself. Because many students think that placements are a final year problem, but preparation actually start
much earlier. और जैसे प्रियल ने बताया कि लाइक आपको पहले से थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा, तो फिर वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो PICT में AIDS और ECE ब्रांच भी आ गई है, सो कंपटीशन जो है काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। और आपको अभी पता ही होगा कि फिर कॉर्पोरेट में क्या सीन चालू है फिलहाल, बहुत से ले ऑफ वगैरह भी हो रहे हैं, तो फिर आपको आप में ऐसी बाकियों से डिफरेंट स्किल्स भी बनानी पड़ेगी। सो उस हिसाब से फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन चालू देना। Okay, so if a student want a good software placement, what should they focus from first year? ओके, तो फर्स्ट ईयर में अगर आप फोकस कर रहे हो तो मे बी 3 चीजें ट्राई करो। फर्स्ट इज DSA और प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेकंड इज कि आप डेवलपमेंट स्किल्स देखो। मेजरली सबसे स्टार्टिंग स्टेज होता है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट करो या फिर मोन स्टैक डेवलपमेंट करो, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन लर्न, कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप, और अगर उसके फ्रेमवर्क हो गए तो आप वो लर्न करो। दैट्स द बेसिक थिंग। एंड थर्ड थिंग इज नेटवर्किंग, बिकॉज हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ही जनरल प्रोफिशिएंसी के भी क्लासेस होते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग कैसे कर सकते हो। और वो क्लासरूम में पब्लिक स्पीकिंग के ही लेते हैं कि ये आपको एक एक टास्क देते हैं और वो आपको बोलने लगाते हैं। सो उसकी वजह से ऐसा होता है कि अगर आप कुछ प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहे हो, फिर हैकेथॉन्स में भी जाते हो, और जब आपको प्रेजेंटेशन देना होता है तब आप फ्लुएंटली दे सकते हो। सो आई थिंक कि ये 3 चीजें ध्यान में रखो और ट्राई करो कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना ज्यादा इफिशिएंट है एज कम्पेयर टू लेट स्टार्ट। सो या दिस थिंग्स आई फील दैट दिस इज इम्पोर्टेंट। And for me, like first is maintain decent CGPA. Second is learn one programming language well. Then start DSA in first or second year. Then build projects. Then participate in hackathons. Then improve communication skills. Then apply for the internship early. अगर कॉलेज में नहीं मिल रही है तो फिर आप ऑफ कैंपस ट्राई करो, सीनियर के साथ कांटेक्ट बनाओ, यानी उनसे भी आप रेफरल वगैरह ले सकते हो। एंड देन स्टे कंसिस्टेंट इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग ओनली इन फाइनल ईयर। So yeah. So now we will move towards a rapid fire round. You have to just rate out these out of 10. Okay. Yes. Yes. So overall college experience. Around 8.5. Enough. Yeah. So overall college experience is 8 out of 10 for me. Your branch. Okay, so my branch is IT, so I feel that it is a good branch. So I'll give it a 9 out of 10. And for me, 7 out of 10. Placement in your branch. As the intake is greater, so I don't know कि इस साल क्या होगा और इस टाइम में प्लेसमेंट क्या होगी, but अभी जैसे ट्रेंड चल रहा है, I feel 8.5 is good, average. And placement in my branch is 6 out of 10. Okay, then coding culture. Coding culture, वो भी 7.5 8 की रेंज है. And for me, coding culture is 10 out of 10 in my college. Okay, and peer group. Peer group is good. It is around 9 out of 10. And for me, it is 9.5 out of 10. Then campus life and fests. Maybe 8. Fests अच्छे से. 6 out of 10. Senior support. Senior support 9 out of 10. Seniors. 10 out of 10 for me, senior support. Yes, and then internship opportunities. Now अभी के लिए मुझे भी पता नहीं है कि कौन से इंटर्नशिप्स आएगी, बिकॉज जस्ट एंटर्ड इनटू थर्ड ईयर, बट जितना लगता है जितना अभी तक आई है अपॉर्चुनिटीज, सो यस इट इज गुड. अराउंड 8.5. Internship opportunity in PSCT, yeah, 8 out of 10. Then इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आएगी, बट इट टोटली डिपेंड्स कि आप उसमें वो ऑफर दे रहे हैं या नहीं, बट डेफिनेटली ट्राई करना होगा तो इंटर्नशिप तो अच्छी खासी आई जाती है. then value for money, ROI. 7.5. बिकॉज फीस भी बहुत ज्यादा है, अराउंड ओपन की 2 lakhs है. सो आई फील कि अगर आप फीस भी देख रहे होगे तो ये कॉलेज को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए कि बहुत ज्यादा फीस है. For me, ROI is 9.5 out of 10. Both means other private colleges से तो फीस काफी हद तक कम है. So yeah, 9.5 out of 10. One thing I want to clear with all students, like Yes, जो अभी yes, Manu, PICT में you can एडमिशन begin. वगैरह लेंगे, कि अभी तक जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर थे PICT में, जिनके कारण मीन्स अभी तक जो भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप देखोगे, सो वो सब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर की वजह से थे, जो कि हमारे यहाँ अभी तक है. लेकिन अभी
अभी वो चले गए हैं दूसरे कॉलेज में और अभी नए ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर है। सो अभी तक के जो प्लेसमेंट थे और जो अभी प्लेसमेंट होंगे तो इसमें आपको डिफरेंस दिखने मिलेगा शायद। सो या अब जो आखिर पिछले साल की जो प्लेसमेंट्स थे, सिर्फ प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख के मत कॉलेज डिसाइड करो। ओवरऑल सब देखो कॉलेज में क्या है, प्रोफेसर्स कैसे सपोर्टिव है या नहीं, सब देखो एंड उसके बाद डिसीजन लो। एंड या ऑल द बेस्ट। Okay, so we have done with the podcast. Huge thanks to Priyal from VIT IT and Pranav from PICT NTC for joining us. And thank you all for tuning into College Pe Charcha. Share this with your friends, drop your questions, and remember, choose wisely. Okay.